السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت سے میچ نہیں کھیلے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات میں بڑا فیصلہ ہو گیا۔ گرین شرٹس میگا ایونٹ کے میچز کھیلنے کے لیے آج سری لنکا روانہ ہوں گے۔ پاکستان کا بھارت سے میچ 15 فروری کو شیڈول تھا۔ ٹی20 ورلڈ کپ کھیلیں گے لیکن بھارت کے ساتھ نہیں۔ پاکستان نے میگا ایونٹ کی روایتی حریف سے ہونے والے ٹاکرے کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات میں طے پا گیا۔ حکومت پاکستان کا عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ، بھارت سے 15 فروری کو میگا ایونٹ کا میچ شیڈول تھا۔ بنگلہ دیش سے روا رکھے گئے آئی سی سی کے متعصبانہ رویے پر پاکستان نے بھرپور رد عمل دیا۔ پاک بھارت میچ نہیں ہو سکے گا۔ آئی سی سی کو بڑے مالی جھٹکے کا امکان ہے۔ ایک دن میں $1 ارب سے زائد کما کر دینے والے ٹاکرے کی منسوخی، کھیل کی عالمی گورننگ باڈی براڈ کاسٹرز بھارتی چینلز پر بجلی بن کر گری، لیکن اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں بھارت سے ہونے والے میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ، 15 فروری کو میچ نہ کھیلنے کی وجوہات نے آ گئیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئی سی سی کے ڈبل اسٹینڈرڈ پر احتجاج رجسٹر کرانا ضروری تھا۔ بھارت سے میچ نہیں کھیلیں گے، حکومت پاکستان کا صاف الفاظ میں اعلان۔ میگا ایونٹ میں 15 فروری کو روایتی حریف سے نہ کھیلنے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کی کئی وجوہات ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش سے آئی سی سی کا جانبدارانہ رویہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت پاکستان اس معاملے پر بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانا چاہتی تھی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق جے شاہ نے اپنے جانبدارانہ فیصلوں سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو انڈین کرکٹ کونسل بنا دیا۔ جانبدارانہ فیصلوں سے انصاف اور برابری کے اصول کی دھجیاں بکھر گئیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پر ایک ملک کے لیے ایک اور دوسرے ملک کے لیے دوسرا معیار اپنایا جاتا ہے۔ یہ سب جانبداری پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا احتجاج رجسٹر کرانا ضروری تھا۔ آئی سی سی اور بھارت کے لیے سب سے بڑا کمرشل دھچکا، ٹی20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا نہیں ہوگا۔ ٹورنامنٹ کی گلوبل ویلیو اور دلچسپی کم ہو جائے گی۔ عالمی اسپانسرز کو بڑے نقصان کا خدشہ۔ ایک دن میں $1 ارب سے زائد کی کمائی کرنے والا پاک بھارت میچ کی منسوخی کھیل کی عالمی گورننگ باڈی کے لیے کس قدر نقصان کا باعث ہوگی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک بھارت میچ یا سونے کی کان، کسی بھی وجہ سے میچ نہ ہونے کا اگر ہو جائے امکان، آئی سی سی ہو جاتا ہے ہلکان پریشان۔ کھیل کی عالمی گورننگ باڈی اپنی جگہ بالکل درست، بھارتی چینلز کا حقہ پانی بھی اسی سے وابستہ۔ پاک بھارت میچ میں ایک چینل پر 10 سیکنڈ کا کمرشل $18,750 کا ہے۔ بھارتی چینلز کو ایک دن میں $5.27 ملین کا فائدہ دیتا ہے۔ $30 سے $40 ملین کی برانڈنگ ہوتی ہے۔ $4 سے $6 ملین کے ڈیجیٹل رائٹس کی کمائی اپنی جگہ۔ گیٹ منی اور ہاسپٹیلٹی باکسز کا منافع۔ پاک بھارت میچ کی مجموعی آمدنی $1.13 ارب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پاک بھارت میچ آئی سی سی کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے۔ روایتی حریفوں کا ٹکراؤ آئی سی سی کے میگا ایونٹس کی مجموعی آمدنی کا 63% منافع کما کر دیتا ہے۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی مشروط شرکت، بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا واضح موقف۔ آئی سی سی نے رد عمل ظاہر کر دیا۔ جاری کردہ اسسمنٹ میں کھیل کی عالمی گورننگ باڈی نے کہا کہ تمام کوالیفائڈ ٹیموں سے برابری کی بنیاد پر مقابلے کی توقع کی جاتی ہے۔ آئی سی سی ٹورنامنٹس کی بنیاد پر اسپورٹس مین اسپرٹ، شفافیت اور منصفانہ مقابلے پر ہے۔ حکومتی کردار کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ فیصلہ عالمی کرکٹ اور شائقین کے مفاد میں نہیں ہے۔ آئی سی سی نے پی سی بی سے طویل المدتی اثرات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی درخواست کی۔ پاکستان نے نہلے پر دہلا مار دیا۔ دہلی سے لے کر ممبئی تک آہو بکا، بھارتی چینل پر صفے ماتم بچ گئی۔ بھارتی اینکرز نے حواس باختہ ہو کر آئی سی سی سے فوری نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ تیسرے ٹی20 میچ کے اختتام پر قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی کر دی گئی۔ تقریب رونمائی کے موقع پر پی سی بی محسن نقوی، نجم سیٹھی، رمیز راجہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے دیگر کھلاڑی بھی موجود تھے۔ پاکستانی ٹیم کی آئی سی سی ورلڈ کپ کی کٹ کی رونمائی دوسرے ٹی20 میچ کے ٹاس کے بعد ہونی تھی، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر منسوخ کر کے آج کی گئی۔
और अभी आपको बताएं तीसरे और आखिरी T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स की ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने मैचेस की T20 सीरीज में कैंगरूज को व्हाइट वॉश कर दिया। 208 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 100 रन का हिस्सा भी अबूर नहीं कर सकी। मेहमान टीम की सफ़ों में तबाही मचाते हुए मोहम्मद नवाज ने 5 शिकार किए। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने खेल की इस तर्ज में सबसे निस्फ सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। लाहौर में तीसरे T20 में बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल कैरियर की 39वीं निस्फ सेंचुरी बनाकर भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। 31 साल बाबर आजम ये 139वां मैच खेल रहे थे। और अब दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 31 शहरी शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि हम 1000 साल भी ये जंग लड़ेंगे, लेकिन धरती का 1 इंच भी नहीं देंगे। पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना। दहशतगर्दों के लीडर ने उसे आज़ादी की जंग करार दी, लेकिन एक यूनियन कौंसिल को भी आज़ाद नहीं करा सकते। अगर इतनी सकत नहीं तो बलोचों को ईंधन क्यों बनाते हो? दहशतगर्द बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें अफगान शहरी भी शामिल हैं। सरफराज बुगटी ने कहा है कि सबसे दर्दनाक वाक़या गवादर में पेश आया, जहां खुजदार से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच घराने को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया, जिनमें 5 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ये कौमियत की जंग नहीं, दहशत की जंग है। 145 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर। कि इतने कम अरसे में इतने दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। ये जिस इस तरह के 1000 हमले हम पर कर कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये ब्रेक होने के लिए नहीं है। दीज पीपल कैन नॉट डू इट, और इनके आका नहीं कर सकते। और फिर ये बलूचिस्तान में जी ताकत का मसला, बलूचिस्तान ताकत से हल नहीं होगा। वो भाई हल करा लो ना फिर आके किसी और तरीके से। इन दहशतगर्दों ने 5 ख़वातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है। तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और खिते में पाकिस्तान की अहमियत है उसको कमज़ोर करते हैं। लेकिन अगर डायलॉग का नतीजा ये है कि दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। BLA को भारत से फंडिंग, बलूचिस्तान में हमले, 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर दिफा ने इंकशाफात कर दिए। कहा कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात और शवाहिद भारत के मुलविस होने की निशानदही कर रहे हैं। मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2-4 करना है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में अमन कायम करना कौमी एजेंडा है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि भारत और अफगानिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी। बलूचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल ली जाएगी। दहशतगर्द जान लें कि खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। मरियम नवाज का अज़म। कहा कि दुश्मन के इशारों पर नाचने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उनका दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना ही बलोच कौमियत से। ये गद्दार हैं, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में तवील वीकेंड का ऐलान। 5 फरवरी पर यौम कश्मीर पर सरकारी तातील होगी। 6 फरवरी को सूबाई सतह पर बसंत की तातील का ऐलान कर दिया गया। हफ्ता और इतवार की छुट्टियां भी शामिल हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम को आराम का मशवरा दे दिया। बसंत की आमद ने लाहौर को एक बार फिर रंगों में रंग दिया है। पतंगबाजी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद मोची दरवाजे का रुख कर रही है, जहां गुड्डे, पतंगें और डोरों की फरोख्त जोरों शोर से जारी है। लाहौर में बसंत के लिए पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त शुरू हो गई। गलियां हो या बाजार, हर तरफ रंग बिरंगी पतंगें नजर आ रही हैं। मोची दरवाजे का मरकजी बाजार खरीदारों से भर गया। शहरियों का कहना है कि बसंत मनानी है तो पतंगे महंगी हो या सस्ती खरीदनी तो हैं।
शहरियों ने हुकूमत से पतंगों की कीमतें कम करने के लिए इकदामात का भी मुतालबा किया। पतंगबाज जहां बसंत की वापसी पर खुश हैं, वहीं पतंगों के मयार और कीमतों पर तहफ्फुज का इजहार भी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गैर मयारी पतंगे और महंगी डोर खतरनाक भी हो सकती है। शहरी कहते हैं कि पतंगों की मांग तो ज्यादा है, ऐसे में अगर रेट कंट्रोल हो तो सबके लिए आसानी हो जाए। पंजाब में मट्टी पाओ कल्चर का खात्मा, साने भाटी गेट के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर SMS डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम कंपनी को काम से रोक दिया गया। तफ्तीश का दायरा निजी कंपनी से बढ़ाकर गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान तक वसी कर दिया गया। सानिया भाटी गेट जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर एक्शन का सिलसिला जारी है। SMS डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम कंपनी को काम से रोक दिया गया। तफ्तीश का दायरा निजी कंपनी से बढ़ाकर गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान तक वसी कर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मट्टी पाओ कल्चर ख़त्म हो चुका है। पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। तहकीकात में कंपनी की मुजरिमाना गफलत और हिफाजती SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी भी सामने आई है, जिस पर कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके 4 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां कराची के इलाके न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब डाकुओं की फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि एजाज अली को 4 गोलियां मारी गईं। मुलजमान मकतूल का पर्स और मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए। रवां बरस अब तक शहर कायद में डाकुओं के हाथों पुलिस एहलकार समेत 11 अफराद जान से जा चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक और खूनी वारदात, कराची में एक और घर उजाड़ दिया गया। न्यू कराची सेक्टर 6.5 नंबर पर फायरिंग से एजाज अली नामी नौजवान की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से एजाज का पर्स और मोबाइल नहीं मिला। वाकया डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का लगता है। मकतूल का भाई अब्बासी शहीद अस्पताल में तफसीलात बताते हुए आपदीदा हो गया। अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। हमें जब एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन किया तो मैं दुकान पे था, तो मैं वहाँ से आया हूँ इधर अब्बासी, तो इसके पास कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने रेफ़र किया है हमें, तो हम गए हैं फिर सिविल ट्रामा सेंटर। उधर गए तो रास्ते में मेरा भाई इंतकाल हो गया और मकतूल एजाज न्यू कराची लासी गोट का रिहायशी था और रिक्शा चलाता था। अबाई ताल्लुक नवाब शाह से था। एजाज के दोस्तों का कहना है कि वो तबीयतन इंतहाई नेक इंसान था। लड़का बिल्कुल शरीफ, और उसकी ऐसी कोई भी तबीयत ऐसी नहीं है कि किसी से फटा फसाद झगड़ा ना ऐसा कोई दूसरा लेन देन है। बिल्कुल सिंपल है, बस जो ना आम आदमी की तरह जो ना। वो हमारे साथ रिक्शा चलाता था, सही है, बहुत अच्छा लड़का था, और जो है ना इसके कातलों को पकड़ना चाहिए। पुलिस ने कहा है कि कातलों का सुराग लगाकर गमजदा घराने को इंसाफ फराहम किया जाएगा। साने गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। अब सिंध के हर बाजार में फायर ऑडिट होगा। सांगड़ में वज़ीर आला सिंध ने बताया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिफाजती इक़दामात ना होने की कार्रवाई की जिम्मेदारान को सज़ा के तौर पर हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जान की कोई कीमत नहीं, मगर जो लोग जाँ बहक हुए उन्हें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। सब दुकानदारों को मुतबादिल दुकान और रकम फराहम करेंगे। डिफेंस के हेड, उनके जो बाकी लोग थे, उन सबको वहाँ से बरतरफ किया है, हटाया है। उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के अमले में जो डिलेज हुई हैं, पानी की तरसील में थोड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, उनको भी सज़ा दी है। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनका दुख बांटने के लिए हमने कहा कि 1-1 करोड़ रुपया हर उस शख्स की जिसकी जान गई उसके लवाहिकीन को कॉम्पनसेशन दी जाएगी। इसके साथ साथ जो तकरीबन 1200 के करीब वहाँ दुकानें थी, तो हमने फ़ौरन 5 लाख रुपए फ़ी दुकानदार दिए हैं ताकि वो अपना किचन का खर्चा चला सकें। उसके साथ साथ कराची चेंबर के साथ मिलके आप हमें ईमानदारी से असेसमेंट करके दें कि कितना माल किसका ज़ाया हुआ है, उसकी कीमत। हमने पहले भी वो पैसे दिए हैं, जैसे मैंने बताया इन तीनों वाक़यात में, और इस दफ़े भी हम। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी गुल प्लाजा नहीं आए। इस शहर के साथ नाइंसाफियों का जवाब देना होगा। कब्ज़ागिरी का ये निज़ाम नहीं चलेगा। कराची में एहतजाजी रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि उनकी जमात बहुत जल्द एक तवील धरने की कॉल देने जा रही है। हम इस्लामाबाद में भी धरना देंगे। उनका कहना था कि 26वीं और 27वीं तरमीम आ सकती हैं तो अवामी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपको एक तवील धरने की कॉल देने वाला हूं, आप उसके लिए तैयार हैं? 14 फरवरी को हम सिंध असेंबली पर एक तारीखी धरना देंगे। तैयार हैं उसके लिए? ये तहरीक सिर्फ कराची में नहीं चलेगी, पूरे सूबा सिंध में चलेगी,
पूरे पाकिस्तान में चलेगी। और मैं अभी इस्लामाबाद के जमात इस्लामी के नज़म से राब्ता कर रहा हूं कि जब आप यहां पर धरना देने आएंगे तो इस्लामाबाद के लोग भी पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने जाएंगे। जिनका ये शहर नहीं वो यहाँ सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जुल्म हो सकता था इस शहर पर हो चुका। कराची को बैरूत बनाने की साजिश की जा रही है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का गवर्नर हाउस में कन्वेंशन से खिताब। कहा यह शहर बारूद के ढेर पर बसा हुआ है। सानेहात, वारदात, हक तलफियों का बारूद बिछा रखा है। इस शहर में टैक्स देने वालों को जलाकर इमारतों में दफन किया जा रहा है। उनका कहना था कि मसला फायर टेंडर के पानी का नहीं, हुक्मरानों के आंखों के पानी का है। चाहते हैं कि बारूद के ढेर के बजाय ये मलबे के ढेर में तब्दील हो जाए। ये शहर की 32,000 से ज्यादा इमारतें जिन्हें इस मर्दमशुमारी में गिना नहीं गया था, जहां का टैक्स वसूल किया जाता है, अब सब इस गुल प्लाजा से हमें लगता है कि सब बारूद से बनी हुई है। जहां पे इन्होंने हमारे उन पाकिस्तानियों को, उन VVIP पाकिस्तानियों को कि जिनकी मेहनत से और जिनके वफादारी के एहसास से, यानी सबसे बड़ा VVIP वो होता है दुनिया भर में जो टैक्स देता है। ये शहर टैक्स देने वालों को भी झुलसा रहा है। इस शहर में अब टैक्स देने वालों को भी जलाया और उसको उसी इमारतों में दफन किया जा रहा है। और खबर शामिल करेंगे भारत से 58 रन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो गया। सेमीफाइनल में जाने पाकिस्तान को 253 रन का टारगेट 33.3 ओवर्स में हासिल करना था। हदफ के ताक़ुब में नौजवान शाहीन 194 रन पर ढेर हो गए। भारत ने मैच जीतकर इवेंट की आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। कराची में बैतुल सुकून कैंसर अस्पताल के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया गया। पैडल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों ने कैंसर के मरीजों की मदद के लिए भरपूर हिस्सा लिया। तफसीलात साद गुजर की रिपोर्ट में। कराची में बैतुल सुकून कैंसर अस्पताल के फंड के लिए पैडल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान बच्चों और प्रोफेशनल खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। इवेंट में कैंसर से सेहतियाब होने वाले मरीज भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जद्दोजहद और उम्मीद भरी कहानियाँ सुनाई। मेरी जर्नी शुरू हुई है 2024 में, डायग्नोस हुआ था, फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह हुए, फिर सारा मेरा इलाज बैतुल सुकून से हुआ। मेरी फैमिली ने, सब ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो आज मैं बिल्कुल कैंसर फ्री हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ। TPL चेयरमैन जमील यूसुफ ने कहा कि ऐसे इवेंट्स मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने का जरिया बनते हैं। ये इवेंट का मकसद ये था कि हम बच्चों को और स्पोर्ट्स को और हेल्थ को दोनों को मिलाएं आपस में, बिकॉज़ स्पोर्ट्स खेलना भी एक हेल्दी चीज़ है, तो इन दोनों को डफटेल करना था। इसमें देखिए आप बच्चे भी खेल रहे हैं, एक नया एक सोर्स बन जाता है बच्चों के ज़रिए के थ्रू चैरिटी करने का। KFC ने बतौर टाइटल स्पॉन्सर इस फलाही मुहिम में अपना किरदार अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के हमरा साद गुज्जर, बुल न्यूज़ कराची। और अब मौसम का हाल बताते हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तहम मरी, गलियात और गिरदनवा में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा, जहाँ बारिश और हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मुल्तान, झंग, सरगोदा, फैसलाबाद में चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द खुश्क रहेगा, तहम सूबे के पहाड़ी अजला में शदीद सर्दी की पेशगोई की गई है। इसके साथ साथ चित्राल, दीर, कोहिस्तान और कालाम में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि सवात, कुरम, वज़ीरिस्तान में भी कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि कोयटा, दोब, ज़ियारत, चमन और पशीन में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। आपको बताएं, रूस में आसमान पर दिलकश फल्कियाती मजहर। आसमान पर चांद के 4 अक्स एक साथ नजर आए। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इतवार की रात आसमान में एक गैर मामूली और दिलकश मंजर देखा गया, जब आसमान पर 4 चांद रोशन हुए। आसमान पर चांद के साथ 3 मजीद रोशन धब्बे नमूदार हुए और यूँ महसूस हुआ जैसे आसमान पर 4 चांद मौजूद हैं। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में आज आने वाला यह हैरान कुन मंजर
پیراسیلین کہلاتا ہے جسے عام زبان میں فرضی چاند کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نایاب منظر اس وقت دیکھنے میں آتا ہے جب سرد موسم میں چاند کی روشنی فضا کے اندر موجود برف کے ننھے ذرات سے گزرتی ہے۔ یہ ذرات روشنی کو مخصوص زاویے سے موڑ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں چاند کے اطراف اضافی روشن دھبے نظر آنے لگتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے آسمان پر کئی چاند موجود ہیں۔ ملک میں آلو کے کاشتکار بھی رل گئے۔ دام زمین پر آ گئے۔ 100 روپے کلو والا آلو 100 روپے کا 5 کلو ملنے لگا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اخراجات زیادہ ہیں، محنت کا معاوضہ نہیں مل رہا۔ ملک میں آلو کی پیداوار معمول کے مطابق عمدہ ہوئی، تاہم برآمدات میں کمی اور اضافی پیداوار نے کسان کو پریشان کر دیا۔ مال کے ریٹ نیچے آ گئے۔ رہی صحیح کمی مہنگی ادویات اور پیٹرولیم مصنوعات نے پوری کر دی۔ کسان بھائیوں کا جو 2 لاکھ روپے کم از کم خرچہ ہے اور جو انکم آ رہی ہے وہ تقریباً 40-50 ہزار آ رہی ہے۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آلو کا ریٹ فکس کیا جائے۔ کاشتکاروں نے کہا کہ آلو کی فصل پر 2 سے 2.5 لاکھ روپے فی ایکڑ لاگت آتی ہے، لیکن یہ فصل کوئی 50,000 روپے میں بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ کاشتکاروں نے کہا کہ پاکستان میں زراعت گھاٹے کا سودا بنتی جا رہی ہے۔ کسی بھی فصل کی پیداواری لاگت پوری کرنا دشوار تر ہوتا جا رہا ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔